Alright everybody, welcome to India's first magical podcast. आप सभी का स्वागत है to my all new show called Hocus Pocus with Anshul. And in today's video, I'm going to talk about 4 things that will change your mentality in life. Or rather, I should say, that will upgrade your mentality in life. Number 1 is always think लॉन्ग टर्म. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी का एक चक्र होता है ना, उसके जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं उस पहिए में, वो लव, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, ये सब ना कैन बी सॉल्व्ड और कैन बेटर इफ़ वी थिंक ऑफ देम इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. Love gets better through long-term relationships. Health gets better through long-term good habits. Wealth gets better through long-term good investments. Talent gets better through long-term focused efforts on a particular thing. Peace gets better when you think long-term on self-reflection. तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% of our problems will actually get solved if we think of them as a long-term project in our life. हमें कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता है जल्दी से, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, बट हम उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो थिंग्स गेट अ लॉट बेटर. एंड मुझे यहाँ पर ये बात भी बोलनी है दैट द क्वालिटी ऑफ योर फ्रूट that you will reap in your relationship, in your health, in your wealth, in your investments actually depends on the quality of your root. Let me repeat this once again. So the quality of your fruit depends upon the quality of your root. अगर आपको इन सारे quadrants of your life में अच्छे, सुंदर, रसीले फल चाहिए तो focus on what you are bowing, what you are sowing while you want to reap the best of results. तो मुझे ऐसा लगता है कि think long term and always think the quality of the end result depends upon the quality of your root, where you come from and how much energy and effort you put in the beginning. That's one thing that I would want to share. If you want to upgrade your life, think long term. Number 2 is stop being afraid to spend money. मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें पैसा खर्चना चाहिए, जिनके ऊपर हमें पैसा खर्चते हुए हमारे दिल में धक धक होती है, उस धक धक को हटाओ यार. वहाँ पैसे खर्चो जहाँ आपकी सोल को, आपको दिल से खुशी मिलती है. रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्लाइंट जो 36 की उम्र में कथक सीख रही है. एंड वो काफ़ी सालों तक सोचती रही कि मुझे ये चीज़ करनी है और अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही थी. एंड इतने पैसे मैं कैसे निकालूं क्लासेस के लिए. एंड देन उन्होंने वो क्लासेस लेना शुरू किया. मेरी खुद के फैमिली में मेरी चाची और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो वो चीज़ परस्यू कर रहे हैं जो उन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परस्यू करनी थी मगर वो कर नहीं पा रहे थे. सो वेदर इट्स ट्रैवल, वेदर इट इज़ टेकिंग कुकिंग क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस, or gardening, or any other hobby of yours that requires money, or any other thing that you really want to purchase, जिसमें आपको लेकर, जिसको आपको पहनकर, जिसको खाकर आपको खुशी मिलेगी, then don't be afraid to spend your money there. क्योंकि when you travel, you are not wasting your money, you are buying memories. When you buy something that brings comfort to your home or to yourself, you are not wasting money, you are buying comfort. So yeah, I just want to say this, that please don't be afraid to spend money where it really needs to be spent. खर्चो पैसा, अपने आप पे खर्चो और खर्चने से डरो मत. अब नहीं खर्चोगे तो कब खर्चोगे? And please share it with somebody जिसको ये सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. Number 3 is very important. I think one of the biggest mistakes that we will ever make in our life is to think that love is about finding the right person. सब कहते हैं शादी की ना एक उम्र होती है, उससे कर लेने चाहिए. You know, एक शादी की राइट एज होती है, तब आपको आपका पार्टनर मिल जाना चाहिए उस राइट एज में. फिर हम थोड़े से बड़े हुए एंड देन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यू नो राइट एज कुछ नहीं होती है, इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन. जब आपको आपका सब सही राइट पर्सन मिल जाए तब कर लेनी चाहिए. हो सकता है आपको ऐसा ना लगे, आप इस बात से अग्री और डिसअग्री कर सकते हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन, इट हैज़ ऑलवेज बीन about becoming the right person.
तो मुझे बस ये कहना है कि डोंट गो आउट एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ पर्सन विद whom यू कैन स्पेंड योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद. पहले वो इंसान बनो जिसके साथ यू कैन स्पेंड योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद. यू कैन अकम्पनी योर सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सबसे ज़्यादा आप खुद के साथ रहोगे. तो जब आप वो इंसान बनना शुरू कर देते हो, यू विल ग्रेविटेट सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड पीपल हु डिज़र्व यू इन योर लाइफ, और वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से आने शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है. जितना ये हंकी डोरी साउंड कर रहा है कि हाँ हाँ कितना आसान है आंचल ऐसा बोलना, बट मैं ये बोलूँगी कि आसान है बोलना और आसान नहीं है करना. तो करके देखो और फिर बोलना, फिर इस बात से अग्री और डिसअग्री करना. जो भी आपको लाइफ में, ज़िंदगी में जैसा इंसान के साथ आप चाहते हो आप रहो, उसकी लिस्ट बनाओ और पहले वो खुद क्वालिटीज़ इम्बाइब करना शुरू करो. तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको वैसे ही सिमिलर कैरेक्टर के लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे. इफ़ नॉट इंटरेस्ट बट कैरेक्टर, कोर वैल्यूज़. हम इस लाइफ पार्टनर वाली टेंजेंट पे एक अलग वीडियो फॉर श्योर बनाएंगे. आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट मूविंग ऑन. नंबर 4 इज़ दैट our life will get easier if we start showing up. मुझे लगता है 90% of our life will get easier if we start showing up. When we start to show up, there is a possibility, there is a chance that things might start to happen in that direction. अगर हम चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं, we don't know what's in the store for us. Basically, you will never know what kind of opportunities are there in the store for you until you go out and start doing it. तो ओवर थिंक करना बंद करो. जस्ट स्टार्ट शोइंग अप. जहाँ भी, जिस भी क्वाड्रेंट ऑफ योर लाइफ में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ उठकर शो अप करना शुरू कर दो. वहाँ अपने एफर्ट्स और एनर्जी लगाना शुरू कर दो. कुछ ना कुछ समय बाद तो निकल ही आएगा. मैंने अभी जितनी ज़िंदगी जी है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, ऐसा होगा कैसे होगा. इतनी ओवर थिंकिंग और इतनी प्लानिंग में हम चीज़ें बिता देते हैं. अगर हम वो बस उठकर सिंपली करना शुरू कर दें, वेदर इट्स एन एक्सरसाइज और एनी प्रोजेक्ट ऑफ योर्स और रिपेयरिंग योर रिलेशनशिप्स, उस डायरेक्शन में एफर्ट लेना शुरू करो एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू अनफोल्ड बाय देमसेल्व्स. एंड नंबर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दैट कुछ भी कर लो, whatever you do, you will always have some kind of issue or conflict going in your life. Like ऑलवेज़ लगा लो. मैं ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट में अपने पर्सनल लाइफ चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, बट आई ऑलवेज नो दैट थिंग्स आर गोइंग दिस इन एवरीबडीज़ लाइफ. और हमारी जो कंडीशनिंग की गई है कि अच्छा वक्त आएगा या बुरा वक्त आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्टेंस ले आना कि यही है अच्छा वक्त और बुरा वक्त, एंड इट विल ऑलवेज गो ऑन लाइक दिस. some days like this and some days like this. जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो उनसे डील करने की हिम्मत भी आ जाएगी. लाइफ इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. यू जस्ट नीड टू अल्टर योर परसेप्शंस, यू जस्ट नीड टू एडजस्ट योर परसेप्शन. तो आपको वो बुरा वक्त ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा और ज़्यादा अच्छा वक्त में आप होश नहीं गवाओगे. जस्ट द फैक्ट दैट whatever is going in your life right now, currently, जितने भी मेस में आप हो, जितने भी सिचुएशंस आप डेली बैटल कर रहे हो, यही ज़िंदगी है यार. कुछ फैंटेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत बेकार होते हैं, कुछ दिन नॉर्मल और बोरिंग भी होते हैं. सो दिस इज़ इट. दीज आर 5 points that I think when accepted makes your life and mentality a lot easier. Well, I really hope that you like this entire conversation, this podcast. Do let me know in the comment section below कि आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा relatable लगा. And thank you so much for watching Hocus Pocus with Anchal. And we are almost close to hitting 10k subscribers. Very close. Thank you so much for all your support. नए viewers के लिए बता दूँ that this is India's first magical podcast, जहाँ पर every Thursday मैं करती हूँ अलग अलग experts and leaders से बातें, and उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ, मी बीइंग अ मैजिशियन. एंड ऑन एवरी सैटरडे हम करते हैं ऐसे ही कुछ दिल की बातें, कुछ नए टॉपिक्स पर चर्चा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप और कौन से टॉपिक्स पर मातेश्वरी आंचल राजकुमार से ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे. एंड प्लीज़ बी वोकल इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई रियली वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद यू गाइज. मुझे बड़ा मज़ा आता है. And thank you, yeah. Thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anchal, and I'll see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.